students of BCom final and MCom 1. This is the numerical problems of unit 2 for BCom part 1 and unit 1 for MCom final year. The problem is indicated that a trader has purchased 4 types of goods and sold at the number of 5. Purchase of goods from other state, purchase of goods including GST, purchase of goods from IGST. Similarly, problems I have already sent on WhatsApp group for BCom final. I will again send the same total bunch of numerical problem to MCom also, but at present it is available in the WhatsApp group of BCom final year. Now in this problem, the requirement is to compute the input tax credit and output tax payable both. Both are cannot be calculated simultaneously. दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं होते हैं. इसीलिए पहले हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू रखूंगा आउटपुट टैक्स पेबल अपने को कैलकुलेट करने. सो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ परचेज. नंबर वन परचेज गुड्स फ्रॉम होल स्टेट. अब ये मत पूछो कि सर कौन सी स्टेट का होगा, कोई भी स्टेट का, लेकिन अपने राज्य में ही वो परचेज किया है. महाराष्ट्र वाले ने महाराष्ट्र से खरीदा, ये मान के चलो. एमपी वाले ने एमपी से खरीदा. कितने का? 10 लाख रुपीस at the rate of 2.5% GST. Technically 2.5% is not the authentic rate of GST. It means जब ये 2.5%, 9%, 6%, 14% ये रेट नहीं है. आप ख्याल रख लीजिए, रेट है 5%, 12%, 18%, 28%. ये 4% के अलावा कोई जीएसटी का रेट लागू नहीं है. फिर आप बोलेंगे सर गणित गलत है क्या? गणित गलत नहीं है, बल्कि ये आपको सुविधा वाला दे दिया है उसने. 2.5% जीएसटी का मतलब ही है कि स्टेट टू स्टेट सेल हुआ है और इसमें 2.5% सेंटर का हिस्सा है और 2.5% स्टेट का हिस्सा है. इसका मतलब टोटल जीएसटी 5% है. 2.5% रेट नहीं है, 6% रेट नहीं है, 9% रेट नहीं है, 14% रेट नहीं है. जब कभी ऐसा वो दिया रहेगा, सो यू मस्ट अंडरस्टूड दिस. The transactions are within the state and this GST is a state or center, and therefore you look the answer. Purchases goods from own state, though here is writing the 2.5% GST each. This each means for state and center. So the cost of value of goods 10 lakhs. Look here, 10 lakhs के 2.5% करोगे तो 25 आ जाएगा. But it will be applicable for both CGST, Center Goods and Service Tax, and State Goods and Service Tax. So 2.5 here, 2.5 here is equal to, it is a 5% GST. Now the purchase are from the own state, therefore no IGST is applicable. Now we move to second transaction. Purchase goods from other state at the rate of 5% GST. Now here the goods is purchased from other state. When the goods is purchased from other state of rupees 9 lakhs, because good is purchased from other state, therefore CGST and SGST will not applicable, and hence 9 lakhs at the rate of 5%, 45,000 rupees total GST will be indicated as a IGST. Now the third transaction, purchase of goods of rupees 8,40,000 including 2.5% GST. Again here, whenever the 2.5 or 6 or 9 or 14% is rate available in the numerical problem, you will read it is not 2.5, it is 5% GST. Because here is 2.5 each, it means in total 5%. So this 8,40,000, you will see here in the computation, I am not writing here the 8,40,000, here is 8 lakhs. Now you wonder, wow sir, how it is? Because there is a reason. When you purchase the goods, pay the tax, and this 8,40,000 is not only the cost of goods, but it is cost plus GST. How much GST? Sir, 2.5%. No, it is not 2.5%. It is 2.5% each.
आप स्टेट टेन सेंटर, देयरफॉर टोटल 5%. So 8,40,000 इंक्लूड 5%. अब 8,40,000 में 5% टैक्स इंक्लूड है, तब हमको इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो ओरिजिनल वैल्यू ये देखिए मैंने यहाँ निकाल के दिया है. परचेज गुड्स इंक्लूडिंग इज द वर्ड 2.5% each GST. Therefore, the value including GST 8,40,000 multiplied by 100. This is the formula. And divided by, so 100 is the original value, here is 5% GST include, hence divided by 105. So when you make this calculation, you will find the value of goods is 8 lakhs. Now 8 लाख अब उसकी वैल्यू आ गई, तो 8 लाख के 5% निकालो, कितना हो गया? 8 पंचे 40,000. Look here, this is the 40,000. So 8 lakh ऑटोमेटिक बाहर निकल गया. अब बच गया 40,000. What is this? This is GST. Now which type of GST? Because word is each. Each मतलब 40,000 each नहीं. यदि आप 40 each कर दोगे तो वो तो 10% GST हो जाएगा. 10% is not the rate of authentic GST. Hence 40,000 का अब आधा हुआ. 20,000 because it is purchase made within the state, hence again no IGST. Understood? Okay. Next, number 4, purchased goods of rupees 735 again including 5% IGST. Look, the problem is very clear. आपको सब कुछ परोस करके दिया रहता है, आपकी थाली सजी हुई है, आपको केवल खाना है. आपको खाना है नहीं खाना. यहाँ जब कौन सा GST है? IGST. It is indicator the goods is purchased from other state. जब IGST लिख के आ गया तो आप ये मत पूछो मुझे या किसी और को कि सर गुड्स कहाँ से खरीदा, ये तो दिया ही नहीं है, और स्टेट से है कि अदर स्टेट से. अरे भाई GST पे कौन सी किया? IGST अदर स्टेट ट्रांजेक्शन रहेगा तभी अप्लीकेबल है. जब अदर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं है तो IGST अप्लीकेबल नहीं है. सो लुक हियर, purchase goods at the rate of 5%. Now it is including GST. Hence we again calculate 7,35,000 multiplied by 100 divided by 105. Why divided? This formula is where applicable. जब गणित में वैल्यू में GST इंक्लूड रहेगा तब आपको इस फार्मूले से जाकर उसकी वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकालने के बाद GST ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा. और जब जैसा यहाँ पे देखो ये दोनों GST की टोटल मिलाकर इसके साथ देखो तो 840 है. वैसे 7 लाख वैल्यू से निकल गई. अब 7 लाख के 5% 35,000. विच टाइप्स ऑफ GST? हाई GST. Therefore here is a IGST. 7,35,000. Now the problem as far as concerned the purchase is over. Hence we will make the total input tax credit. आपको वैल्यू की टोटल करनी नहीं है. वैल्यू की टोटल से CGST, SGST और IGST का कोई रिलेशनशिप नहीं है. Now we make the total only of central GST, state GST. It will always equal. ये दोनों में डिफरेंस आता ही नहीं है. जिस समय ये दोनों में डिफरेंस आ गया, you were wrong. Problem will not wrong. ख्याल रखिए, ये पत्थर की लकीर है, जितना सेंट्रल GST आएगा उतना ही स्टेट GST आएगा. बट हियर इज नो कोरिलेशन बिटवीन IGST एंड दिस GST. IGST इज द सेपरेट, वो है 80,000, एंड ये तीनों GST का इसकी वैल्यू से कोई रिलेशनशिप नहीं है. देयरफॉर मैं वैल्यू निकाला नहीं. तो प्रॉब्लम में 2 चीज पूछा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स पेबल. अभी हमने क्या निकाला? इनपुट टैक्स क्रेडिट. नाउ यू वॉच वीडियो कंटिन्यूअसली. विदिन a few seconds we will calculate output tax payable. Don't move here and there. Look here, compute output tax. Now no credit because the word is payable. Column will be the same but nature will be different. Why? Column will be equal, but whole transaction will differ now. Minute, very observably. बिल्कुल सिंसियर तरीके से आप
इसको समझिए, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे वैसे आएंगे। आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स का मतलब बहुत बार क्लियर कर दिया हूँ, बार बार बताऊंगा तो वीडियो में रिपीटेशन आता है। ये देखिए नंबर 5 क्या बोल रहा है, ट्रेडर्स सोल्ड ऑल द अबव गुड्स, ये चारों वस्तु जो उसने परचेस किया ऑन 10% प्रॉफिट विद इन ओन स्टेट। खरीदते समय उसने एक अपने राज्य से खरीदा, एक बाहर के राज्य से खरीदा, एक अपने स्टेट से खरीदा, एक बाहर के स्टेट से खरीदा। ये उसका बिजनेस है, कहीं से भी परचेस कर सकता है, लेकिन लोकल मार्केट में वो सेल कर रहा है। तो चारों गुड्स को उसने, और यहाँ क्लियर कर दिया ट्रेडर्स सोल्ड ऑल द अबव गुड्स, जितनी उसने चारों वस्तु ऊपर खरीदा, 7-10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। कहाँ पर, विद इन ओन स्टेट। और जीएसटी कितनी ले रहा है, 2.5% ईच। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। पहले हमने कैलकुलेशन किया परचेस पर, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं सेल्स पर। देयरफॉर हेडिंग चेंज, कंप्यूट आउटपुट टैक्स पेबल नंबर 1। लुक हियर, सोल्ड गुड्स, पहली वस्तु कितने की थी, 10 लाख की। सोल्ड गुड्स 10 लाख की थी, उसको क्या किया, 10% प्रॉफिट पर बेचा। ये देखिए वीडियो है थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सोल्ड गुड्स ₹10 लाख प्लस 10% प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया भैया, ये 11 लाख की हो गई। गलत बोल रहा हूँ क्या, 10 लाख की वस्तु, उस पर 10% प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख। तो गुड्स कितने की होगी, 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू 11 lakhs एट द रेट ऑफ 2.5% GST। तो 11 लाख के 5%, आप 2.5 मत बोलो, 2.5% ईच इज इक्वल टू 5%। 11 × 5 = 55,000। ओके, 55,000। अब 55,000 उसने पहले क्या बोल दिया, सारा का सारा ट्रांजेक्शन कहाँ है, विद इन ओन स्टेट। अब विद इन ओन स्टेट बोला तो इस एंटायर प्रॉब्लम में अभी कहीं पर जो IGST है ही नहीं। मैं पहले मुद्दा खत्म कर दिया अब आपका, क्योंकि उसने पूरी की पूरी चारों गुड्स आर सोल्ड इन द ओन स्टेट, बाहरी राज्य में बेचा नहीं है, तो IGST आएगा ही नहीं। तो हर ट्रांजेक्शन में अब CGST और LGST का बंटवारा करना है। तो 11 × 5 = 55, 55 का आधा 27,500, 27,500। नेक्स्ट नंबर 2, सोल्ड गुड्स, सेकंड गुड्स कितने की थी, 9 lakhs प्लस 10% एट द रेट ऑफ 5% GST। तो वैल्यू हो गई इसकी 9,90,000। अब 9,90,000 के 5% आपको GST कैलकुलेट करना है। तो 10% होता है 99,000। तो 99,000 का आधा, तो 90 का आधा हो गया 45, और 9 का आधा 4,500। तो 45 और 4 49,500। देखिए इसका डबल टोटल कर लेते हैं हम। 5 × 10 0, 9 18 19 4 8 9। ओके, 9 18 19 9 80 के 4 5 4 9, तो 99,000। सॉरी 49,500 इज द टोटल, 49,500 टोटल। तो 49,500 का आधा हो गया 48,750। चेक करूंगा मैं भी, डोंट बी इन हरी। कैलकुलेशन के लिए हियर 9,90,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से 0 गया, 0 5 5 45 की 5 हासिल किया 4 5 45 4 49। अब इसको हम 2 से भाग दे देंगे। 2 2 4, 2 6 के 8, 2 7 की 14, 2 25 10, 24,750, 24,750। You make your own calculation. Now number 3, sold goods। अब आपको यहाँ पर ही 840 दिख रही है, बट बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसमें मैंने वैल्यू निकाला था। दिस इज नॉट द वैल्यू,
इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 8 lakhs. You check the problem repeatedly. Plus 10% profit and at the rate of again 5% GST. 2.5% GST each. तो 8 lakhs का 10% प्लस किया, ये हो गया 8,80,000. Now 8,80,000 का 5%. 8,80,000 into 5%. Same equations will be 00 5 8 40. किशोर ने हासिल किया 4 5 8 40 4 44 44,000. Because of 44,000 is the total GST, it will converted into 50-50. This is the rule. आप अपने मन से कुछ नहीं करना है, टोटल जीएसटी आधा आधा होता ही है. नंबर 4, सोल्ड गुड्स, फोर्थ आइटम 735 इज द वैल्यू, बट आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट किया है, उसकी वैल्यू 735 नहीं 7 लाख थी. उस पर 10% प्रॉफिट और एट द रेट ऑफ 5% जीएसटी. तो 7 का 7,70,000 हो गया. 7,70,000 सेल अगेन 7,70,000. The value would be 00 5 7 35 की 5 3 5 7 35 और 3 38. 38 का आधा 19 250 19 250. कैलकुलेशन की टोटल आपकी आनी चाहिए. Now how what we are actually calculate output tax payable on सोल्ड. बस छोटी सी बात आपको समझनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेस पर, आउटपुट टैक्स सोल्ड पर. तो कैसा सोल्ड किया जाएगा, हो गया, प्रॉब्लम ही खत्म हो गया आपका. ये देखो टोटल करनी है, तो ये 750 200 1000 500 1500 और 7 1 8 8 4 12 12 2 14 14 9 23 की 3 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9. आई थिंक सो टोटल विल बी द इक्वल. आ नहीं चाहिए 5 तो अंदर 0 5 6 7 13 तो 15 5 1 7 8 4 12 तो 14 9 23 3 2 2 4 2 6 2 8 और 1. Now this is what it is a total output tax. This is the payable. Now in the unit it is only required single person will be there. He will make the purchase and sold the same goods either in one state or in other state. When good purchase from one state, CGST, SGST. When good purchase from other state, IGST. Similarly, treatment will be on the portion of sale. When the goods sold are within one state, again CGST, SGST, and if the goods sold in other state, then IGST. But you must look what is the value. Sometime the value will be include GST, sometime maybe not with GST, sometime maybe on discount also. Hope you must handle the things. Okay, thank you.